पाकिस्तान को सुनहरा मौका मिल गया कि द आर्ट ऑफ वॉरफेयर हैज टू बी बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ chaos because in chaos lies opportunities. Does India have any meaning without the constitution of India? पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश, कभी क्या ऐसा हो सकता है कि 3 फ्रंट्स पे इंडिया को अटैक किया जाए? चाइना के पास लेवरेजेस है। सऊदी अरेबिया के साथ ब्रेंट ऑयल एग्रीमेंट 1973 को साइन हुआ था। उसमें जो भी ऑयल खरीदेगा वो डॉलर में खरीदेगा। उसका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सऊदी अरेबिया हैज टू इन्वेस्ट इन यूएसए। Peak of dominance of superpower was actually depicted by the dominance of power. How do you think the world order is going to change after things like this? What is India to China? China is to USA. USA does not want India to become a second China. 2050 टन की कोकेन जो है उससे पिछले साल में एक्सपोर्ट हुआ था कहाँ यूएसए के अंदर। एक टन का जो कीमत है 25 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 200. Ultimately they have to bow down, reconcile to the strength of India. The strength of India is geography. Don't ask what a nation can do for you. You ask what we can do. Hello everyone, I'm Sumit Budania and welcome to another episode of Mic Drop by Sumit Budania. हम रोज न्यूज में देखते हैं wars, threats, alliances, Trump, Venezuela, Iran, Russia, Ukraine. The real question is, क्या ये सब चीजें कनेक्टेड हैं? The answer is yes, geopolitics. आज बैटलफील्ड सिर्फ जमीन पे नहीं है, इकोनॉमी में है, टेक्नोलॉजी में है और आपके नैरेटिव में है। इस रिपब्लिक डे के मौके पे आज हम इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को न्यूज हेडलाइन से बाहर निकाल के समझाने की कोशिश करेंगे और इस पे बात करेंगे। दिस इज नॉट अ न्यूज डिस्कशन, दिस इज गोइंग टू बी अ पावर डिस्कशन। We are talking to someone today who has lived strategy on the ground. Please welcome a soldier, a leader, and a mind shaped by real battle decisions. Major General Sudhakar Ji, a senior geopolitical and strategic defense expert. Welcome to the show, sir. Thank you, Sumit. It's a great pleasure to connect with you, and I'm really humbled by this gesture of yours. And I'm more humbled by the ambience the studio is creating and throwing up. Thank you so much. So we'll get to the thing, sir. कोई भी जियोपॉलिटिक्स समझने लगता है तो उसको एक एज एन इंडियन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि यार हम ये कहाँ फंस गए यार। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, हाउ डू यू डिस्क्राइब इंडिया सिचुएशन इन दिस? Beautiful question. We need to understand the meaning of geopolitics. Geo is geography. Politics is politics. Simple. Okay. So when you combine both the things, neither of the two can exist without the others. They have to mutually support and coexist. And then comes the meaning and interpretation of a nation state. So let me just give quick example to this. आज के दिन में हिंदुस्तान के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन का कोई एक एजेंसी डील जो करता है वो कहा है, जो कंज्यूमर बेस होता है ना, कंज्यूमर बेस, they have defined India as on today has got more than 570 million people with a capacity to spend $12 a day. China has got 787 million or so. They're growing rapidly. We are also growing rapidly. And by 2035, we would have overtaken China with 1035 something figures. What does it mean? It means that the consumer capacity in India, our domestic consumption is so high, nobody can ignore, no matter how much of teeth and eye they try and show and assert, and tariff or no tariff, and all kinds of rhetoric and dramatics will have no bearing. Ultimately, they have to bow down, reconcile to the strength of India. The strength of India is geography, political stability, and the economics. By no means am I saying that you ignore the military might. No. Time has come, India as a country and its immediate neighborhood has to focus on an issue called a comprehensive national power. जो चाइना ने 1980 से शुरू किया था, because it dreamt of becoming a global power then, Deng Xiaoping के टाइम में, okay? तब से वो शुरू किया. What is comprehensive national power? Comprehensive national power will have military, will have economy, will have soft power, will have language, will have culture, will have hard power, technology, yes, artificial intelligence, your large language program, anything, your semiconductor industry, anything that you talk of, export. Export is primarily one of the factors which India has to focus on. That's why we have set a target of $2
trillion US dollar by 2030. And as on today, our export has reached a figure of estimated figure is around $850 billion. We started from a scratch. We are nowhere. And look at the FTAs that we are dealing with. Despite all resistance, opposition, and obstacles USA is trying to impose against India, we are still the shining spot in the world today. आप बात कर रहे थे इंडिया के शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स की। क्या आपके हिसाब से इंडिया के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। As a country. Yes, you see, you have to understand. Firstly, I always maintain कोई बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए आपका एंड स्टेट क्लियर होना चाहिए। हम फौजी हैं, फौजी सिखलाई यही होता है कि अगर कैप्चर करना है ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव, कितने दुश्मन है, क्या हथियार है, कैसे जाओगे, रास्ता क्या होगा, सपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, दोज काइंड ऑफ। तो इसी तरह देश को अगर आगे ले जाना है, सिलेक्शन ऑफ एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टेट आपको 60 साल लगा 1947 से लेके 2007 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। ओके, 2007 से लेके 2014 तक 7 साल के अंदर आपने उसको डबल कर दिया, 2 ट्रिलियन बन गया। 2014 और 2019 5 साल के अंदर आपने उसको 3 ट्रिलियन बना दिया। अगर पैंडेमिक नहीं आता तो मेरा हिसाब के मुताबिक 2019 के बाद 2022 या 23 तक आपका ये 4 ट्रिलियन बनना था। लेकिन ये विलंब या डिले होने का कारण ये पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक की वजह से हम 2025 को बने 4 ट्रिलियन या 4.19 ट्रिलियन। अब मेरा अंदाज ये है कि ये 2026 में ये बढ़ के 4.19 नहीं 4.75 ट्रिलियन हो जाएगा। 2027 एंड तक ये 5.50 या 6 ट्रिलियन के करीब करीब हो जाएगा। 2028 तक 7 ट्रिलियन बनने का संभावना है। मैं एक टारगेट बना रखा हूँ, मेरा जो शॉर्ट टर्म विजन है कि 2025 से लेके 2030 इसको आप एक शॉर्ट टर्म स्पेक्ट्रम मानिए। उसमें सबसे पहले इकोनॉमी हैज़ टू कम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने टारगेट सेट किया है 7 to 8 ट्रिलियन, मेरा हिसाब के मुताबिक आ रहा 9 to 10 ट्रिलियन। मैं इसको कम किया, उसको कंजर्वेटिव 7 to 8 ट्रिलियन। कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे आप कुछ भी करो। 2040 नो, 2030 को कह रहा हूँ। 7 से 8 ट्रिलियन आपका ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, ये इकोनॉमी है। तो पर कैपिटा भी बता दिया, आज के दिन में आपका 3051 है पर कैपिटा, आपका बढ़ के 4000 से $5000 बनना चाहिए उस समय के बाद 2030 और उसके बाद 2035। वो है मिड टर्म, मैंने लिया मीडियम टर्म गोल जो है, उसमें मैंने टारगेट रखा है 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर, जिसका जीडीपी, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ। और पर कैपिटा जो है 4 से 5000 था, उसको बढ़ा के मैंने कर दिया है उसको 8 से $9000, ठीक है नहीं। उसके बाद 2035 से सीधा मैंने 12 साल डाल के 2047 तक लिया हूँ मैं। उसमें गोल रखा हूँ, हिसाब करके मैंने बताया है सब कुछ। और मैंने एक इकोनॉमिस्ट है, हमारा IMF के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे विश्वनाथन कृष्णमूर्ति, उन्होंने खुद बोला है 12 अगस्त 2024 को एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। इट केम आउट ए लॉट ऑफ इंटरनेशनल मैगजीन है कि हिंदुस्तान अगर 7 to 8% रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रो करता है, वो लिखा है 8 to 9%, 8 to 9 तो होना मुश्किल है, मैं कह रहा 7 to 8% अगर ग्रो करेगा टिल 2047, हिंदुस्तान का जीडीपी जो है 55 ट्रिलियन बन जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता है। इज इंडिया रेडी फॉर दिस मॉडर्न वॉरफेयर, जहाँ पे आउटराइट लड़ाई ना होके, मैदान पे जंग ना होके, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है? It's a very good question. All of these threats. Yes. How ready are we? I'll be very frank with you, and I'm grateful that Galwan happened. I'm grateful because Galwan happened. India started galloping. Right. We started doubling down. ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना आपका आंखें दिमाग खुला नहीं था, ना बोलते रहे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको समझ में आता है। चाइना हैड लेफ्ट इंडिया बिहाइंड। मेरे आर्टिकल छपे हैं, मेरे जो इंटरव्यू हैं इंडियन एक्सप्रेस, काफ़ी सारे न्यूज़ पे, पार्लियामेंट में डिबेट हुआ है इसको। आई हैड गिवन माई कमेंट, इंडिया, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट कि इंडिया इज 20-30 years behind China in technology, in infrastructure development, in rare earth element, 20-30 years, it is 75 years behind. Really? So when China was making headway for rare earth element in 90s, India was just about waking up, liberalize. And when we are liberalizing, the globalization phase had started.
Okay, so we didn't know. Still, we have navigated very complex environment and come a long way, and that has to be complimented and acknowledged. But the fact of the matter is, we just about started. When you're asking about this question, we are far, far behind. We are nowhere closer to China. We are nowhere closer to America. Okay, we may beat our chest simply to boost up our inner esteem. Yes, we are in the race. And But as compared to Pakistan? Pakistan, there is only one thing in which they have left India behind. Rest all things we are miles ahead. And that one thing is the drones. Okay, they had left India behind by 10 years, but I must thank the government of India. They have actually applied themselves. And in past 1.5 years' time, as Operation Sindoor was launched in May, 2 years' time, we have made significant strides. We are trying to catch up. When I am saying catching up, not that Pakistan is innovating and doing research and development and creating everything. They are also dependent on Turkey. So our platforms which we are creating, much part of it are being bought from outside. They are being outsourced. We are only assembling them. So until we start producing those small subcomponents, there is a need to identify the way we went for Atmanirbhar Bharat. We started producing all the way. Achha, let me also clarify one point. People will do well to understand. No country in the world can ever produce 100% of the subcomponents of a system. I have been giving lectures that yes, we are the second largest mobile exporters in the world. But 90 to 95% of the subcomponents are brought from outside. You cannot produce everything. Okay, so that is the new normal. You have to digest. But as far as the defense items are concerned, there is a requirement because it has got direct implication with regard to the security. We need to produce as much as possible all the subcomponent, all the ecosystem within the country. Only then you can call yourself a self-reliant and Atmanirbhar Bharat. I think the new concept is make in India, make for the world. Well, these big slogans are good until unless we produce everything here in India, maximum products, we will not be successful. We know, sir, that Pakistan one-on-one war में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते. It's a well-known fact. बहुत recently अभी मैंने पढ़ा कहीं कि पाकिस्तान has been over decades building on a working on a strategy जिसको वो कहते हैं bleed India with 1,000 cuts. कि आप ड्रग्स भी भेजो, आप टेररिज्म भी करो, आप बॉर्डर पे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स भी करो. हाउ डू यू थिंक इंडिया शुड बी टैकलिंग अ नेबर लाइक दिस? Great, great question, Sumit. डेकेड एगो नहीं, ये जो आप कह रहे हो ब्लीड इंडिया विद 1,000 cuts, ये जुल्फिकर अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे 1965 में, यूनाइटेड नेशन, इसी का मिलता जुलता टाइम है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सितंबर के महीने में लेक्चर देना पड़ता है जाके हर देश का प्रधानमंत्री. उस लेक्चर में उन्होंने जिक्र किया था, ठीक है ना, कि हिंदुस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको समथिंग वर्ड्स टू द इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग इंडिया विथ 1,000 cuts. तो जैसे वो वापस आए तो उनका वो मार्शल रूलर जो है ना, जियाउल हक, एंड जियाउल हक व्हेन ही टुक ओवर इफेक्टिवली एज अ मार्शल रूलर, दैट इज इन 1979, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाया पाकिस्तान का, उसको बोलते हैं टू ब्लीड इंडिया विथ 1,000 cuts. सो क्योंकि ये जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, इट डिड नॉट गो डाउन टू वेल. 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा देश है जो इतना पीडब्ल्यू, एंड टू लुक आफ्टर देम, इंडिया वेंट आउट ऑफ द वे. हमारे अपने जवान जो है नीचे सोते थे, कंबल उनको देते थे, खाना उनको लुक आफ्टर करते थे. अतिथि देवो भव है ना इंडियन प्रिंसिपल, ये किया जाता था. वी यूज्ड टू पेनलाइज आवरसेल्फ, पनिश आवरसेल्फ टू लुक आफ्टर द पीडब्ल्यूज ऑफ पाकिस्तान. एंड लुक एट व्हाट पाकिस्तान. सी, डिस्पाइट 93 prisoners of war, वी कुड नॉट लेवरेज. ये एक अनदर इशू जो सवाल आप पूछ रहे हैं, देश को हर विषय में लेवरेज निकालना है. आपने क्या लेवरेज निकाला? आप हाजीपुर पास लिए थे 2 लड़ाइयों में, उसको वापस दे दिए. आपने बाउंड्री सेटल नहीं किया. आप शिमला एग्रीमेंट बनाए, शिमला एग्रीमेंट में बोला कि बायलैटरल रिलेशंस होगा, ठीक है ना. ये आपका जो CFL सीज फायर लाइन था 1947-48 में, उसको आपने बोल दिया क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल. उसको भी आई भी नहीं बनाया आपने. या जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, जिसके लिए पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन ले रखा 94 में, ये 72 की बात बोल रहा हूँ, उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया. भाई वापिस दो. Where did India show its, I am not saying aggressiveness,
I am not saying about assertiveness. I am saying about India as a civilization has survived because of truthfulness, because of trust. Trust and truthfulness gives inbuilt self confidence. इंडिया को कोई नहीं हिला सकता है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स है, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि 71 ऑपरेशन में उनको यकीन हो गया था कन्वेंशनल ऑपरेशन में वो जीत नहीं सकते हैं. और 79 के आसपास में सोवियत यूनियन के ट्रुप्स आने लगे कहाँ, अफगानिस्तान में. तो उनको वहाँ से हिलाने के लिए ये क्विक मनी उनको अर्न करना था अमेरिका से. तो अमेरिका ढूंढ रहा था कैसे सबक सिखाएं, क्योंकि उससे पहले वियतनाम में उनको देवर किक्ड आउट ऑफ वियतनाम. तो वो भी ढूंढ रहे थे कि कैसा एक सुनहरा मौका मिले, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे. और वो वियतनाम से जो किक आउट हुए थे, कौन था उसमें? सोवियत यूनियन था. पाकिस्तान को सुनहरा मौका मिल गया कि इससे बड़ा मौका, कोल्ड वॉर स्टेज था उस समय 1.0. पाकिस्तान ने बोला कि भैया वो आ गए हैं तो आपको हम मदद करेंगे उनको निकालने में. तो कैसे मदद करूँगा? तो वो हमारे ऊपर छोड़ दो. तो उन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया मुजाहिदीन्स. मुजाहिदीन से फिर जाके हुआ क्या, अलकायदा. वही अलकायदा जाके 9/11 ठोका उनको. ठीक है कि नहीं? मुजाहिदीन क्या थे? अलग अलग देशों से वो लोग लेके आए. वो लॉजिस्टिक कैरिज करते थे, कोरियर होते थे, हथियार, एमुनिशन, हैवी लोड वो लेके जाते थे. जहाँ पे म्यूल्स नहीं होते थे उधर मैनुअली लेके फ्रंट लाइन में जाके सप्लाई करते थे. किसको? अमेरिकन CIA मॉड्यूल्स. किसके खिलाफ? सोवियत यूनियन के टैंक्स, सोल्जर्स, मिसाइल नेट्स, वेपन प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल्स, ठीक है ना, एम्बुशेस, इनके खिलाफ. तो उनको निकाल दिए. 1989 के बाद तो क्या हुआ? 79 में एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने शुरू किया था, जियाल जग, फ्रॉम पाकिस्तान प्रेसिडेंट, नॉट फ्रॉम इंडियन. उसको बोलते हैं K2 डेस्क. और K2 डेस्क क्या? कश्मीर एंड खालिस्तान. ISI के नीचे खालिस्तान चुप हो जाएगा, कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा. कश्मीर चुप हो जाएगा, खालिस्तान स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि दोनों का कॉमन बॉर्डर है, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 138 किलोमीटर और समथिंग. तो 79 के आसपास उन्होंने वो दंगा शुरू करने की कोशिश किया, सिविल अनरेस्ट. तो हुआ नहीं, तो हाथ पैर मार मुर के उन्होंने उससे पहले पंजाब में सक्सेसफुल हो गया था, बट वी कंटेन पंजाब सिचुएशन. तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने इलेक्शंस के दौरान, रिग्ड इलेक्शन की वजह से, they got an opening for, they call it insurgency, we call it terrorism. Insurgency went up to a particular timeline. Beyond that, क्योंकि देश विदेशों से आते थे मुजाहिदीन, फॉरेन टेररिस्ट आते थे, उनका जो मोडस ऑपरेंडाई था, इट वाज एज पर अलकायदा स्टाइल या ISIS स्टाइल. तो उस समय फिदाइनी अटैक का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ ना, फिदाइनी अटैक कहीं इंसर्जेंसी में नहीं होता. जब फिदाइनी अटैक स्टार्ट हुआ, इट वाज द फर्स्ट सिंबल और मैनिफेस्टेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी. उस समय की बात बता रहा हूँ. दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड ए टेररिज्म. आज हम जो टेररिज्म कहते हैं, वेस्टर्न मीडिया जो है उसको इंसर्जेंस बोलते हैं. ठीक है. सो बेसिकली काउंटर स्ट्रेटेजी आप पूछ रहे हैं. काउंटर स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है. सर, बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो गया है, गवर्नमेंट टॉपल हुई है. श्रीलंका में ये हुआ है हाल फिलहाल में. नेपाल में जेनजी मूवमेंट हुआ था, उससे ही हुआ है. तो क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई ये करवा रहा है, और अगर करवा रहा है तो कौन करवा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. हम सबको मालूम है, एक थ्यूसिडाइड ट्रैप बोलते हैं. थ्यूसिडाइड ग्रीक का एक हिस्टोरियन हुआ करते थे. उन्होंने बहुत अच्छा ग्रीक भाषा को ट्रांसलेट करके अगर इंग्लिश में बोलेंगे, वो कहता है, मतलब बेसिकली माइट इज राइट. जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस बोलते हैं ना, जिसके लाठी उसका भैंस, कहावत में माइट इज राइट. बहुत बढ़िया चीज़ बताए थे. द पावरफुल विल डू व्हाट इट कैन, ओके, द वीक विल सफर व्हाट इट मस्ट. मतलब इट इज़ अ वर्बेटिम ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक लैंग्वेज इनटू इंग्लिश. एसेंशियल पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था एथेंस और इसके बीच में, ये जो पर्शियन से आए थे टीम, लड़ाई काफ़ी हुई थी. तो बेसिकली व्हाट इट सेज इज कि जो पावरफुल है वो करते रहेगा, जो मर्जी हो उसका. कोई एथिक्स नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है. चाहे आप कितने भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर बोल दो, आज तक अमेरिका, आप बता दो मेरे को कहीं पे रूल बेस्ड. वो अनक्लोज के वो फिलीपीन साउथ चाइना सी में वो बोलते रहता है कि अनक्लोज 1982 के मुताबिक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए. कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? अमेरिका साइन क्यों नहीं किया है ना? सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि हो क्या रहा है, किसके हाथ है? हाथ ये है कि कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी हराना नहीं चाहेगा. जब तक
ब्रिटिश की जैसे हालत ना हो जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनका कॉफर्स में थे ही नहीं, कुछ पैसा ही नहीं था, सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं था जी। तब तक हड़बड़ी में जल्दी उनका 1948 को हमारा इंडिपेंडेंस होना था फॉर्मली, जल्दबाजी में उन्होंने एक साल उसको प्रीपोन किया, एडवांस कर दिया। देखिए ना, उनका हालत इतना खराब हो गया था। तो जब तक ये अमेरिका का वो हालत नहीं होता है तब तक वो चलती रहेगी, अपना जो प्रभाव है, डोमिनेंस है, वो बढ़ाते रहेंगे। ये अमेरिका इसमें विदाउट डाउट, ऑफ कोर्स, वेर इज द डाउट, श्रीलंका, बांग्लादेश, एवरीवेयर सर, विदाउट डाउट। आज के दिन में ईरान में जो कुछ हो रहा है, क्या आपके मन में कोई डाउट है मोसाद और सीआईए के बिना ये कोई ड्रामा चल सकता है? रेजिम चेंज इतना आसान नहीं है, और ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, उसको भी मत, ये नहीं कि मैं सपोर्ट में बोल रहा हूँ ईरान के सपोर्ट में। टेररिज्म बाय नो मीन्स इज टू बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट 3 स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बताया था। अमेरिका, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक कंप्लेसेंसी स्टेज पे आ गया। वो कंप्लेसेंसी स्टेज में कि भाई उनका जो एम था जियोपॉलिटिक्स, उसका मदद लेके सोवियत यूनियन को उन्होंने डिसइंटीग्रेट, चाइना को मदद लेते हुए, तब उन्होंने सोचा, उनकी सोच विचार के मुताबिक ये जो पिवट ऑफ एशिया उसको शिफ्ट करना है। तो ईस्ट चाइना, साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट एशिया में जो बेसिस थे उसको वो अबैंडन करने लगे और शिफ्ट कहाँ हुए? मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में जब शिफ्ट हुए, ये 90s की बात है, उस समय वो ऑयल के लिए डिपेंडेंट होते थे। सऊदी अरेबिया के साथ ब्रेंट ऑयल एग्रीमेंट 1973 को साइन हुआ था, उसमें जो भी ऑयल खरीदेगा वो डॉलर में खरीदेगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सऊदी अरेबिया हैज़ टू इन्वेस्ट इन यूएसए। 5-7 पॉइंट है, मेन मुद्दे में बता रहा हूँ, तो अभी भी चल रहा है हालांकि, जैसे डॉलर वर्ल्ड करेंसी बना था। करेक्ट। सो पीक ऑफ डोमिनेंस ऑफ सुपर पावर was actually depicted by the dominance of dollar as a international reserve currency. आज के दिन में कितने हैं इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी? एक डॉलर है, एक येन है, एक यूरो है, ये 3 को माना जाता है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज 86 to 89% डॉलर का होता था एट द पीक पीरियड, एग्जैक्ट ईयर आई डोंट रिमेंबर, बट इट केम डाउन टू 54% बाय द टाइम द पैंडेमिक वाज अनलिशिंग द वर्ल्ड ओवर। कोविड पैंडेमिक के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जिस दिन ये 54% से 50% और नीचे आ जाता है, आप मान के चलिए ये जो डिक्लाइनिंग सुपर पावर बोलते हैं, ये डिक्लाइनिंग नहीं बल्कि ये डिक्लाइंड सुपर पावर हो जाएगा। मतलब इट विल बिकम अ इरिवर्सिबल माइलस्टोन, इट कैन नॉट बाउंस बैक टू इट्स अर्लियर स्टेटस। डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए ये सारी चीजें क्यों डर रहा है? वो चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लिवरेजेस, उसके पास मिनरल्स हैं, उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, वो ईरान से आज भी ऑयल खरीद रहा है, रशिया से आज भी खरीद रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। हिंदुस्तान ऑयल खरीद रहा है, सिर्फ ऑयल का बहाना लेके पीछे पड़ा हुआ है। ऑयल इज नॉट द मेन इशू। ऑयल तो इन्हीं के बोलने पर, अमेरिका के बोलने पर ही हमने लिया था वहाँ पे। हमारा तो 1% से कम ही ले देते थे रशिया से। 1% स्टार्ट हुआ 2022 को, है नहीं? उसके बाद 1.46, देर आफ्टर 2 पॉइंट, देर आफ्टर 13, देर आफ्टर 16%, एंड द पीक वॉज September 2024, 41%। क्यों? सस्ता मिल रहा था। इन्होंने ही बोला था टू स्टेबलाइज द इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। अभी वो ऑयल के पीछे पड़े हैं, कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। ऑयल इज नॉट द इशू। इशू इज आप 2022 से लेके अगर दिसंबर 2025 तक लेंगे, आप देखेंगे 135.7 बिलियन US$ से हमने ऑयल खरीदा है टोटल। ओके, तो 135.7 बिलियन US$ का जो खरीदा है, 75 बिलियन जो है हमने ट्रांजैक्ट किए हैं नॉन डॉलर करेंसी। ये वही डोमिनेंस ऑफ डॉलर, इसका इनडायरेक्टली एक डी डॉलराइजेशन। 41 कंट्रीज आर डूइंग ट्रांजैक्शंस इन नॉन डॉलर करेंसी, युआन, येन, यूरो। डॉलर में कोई नहीं कर रहा, या धिरंग। इंडिया इज डूइंग ट्रांजैक्शन विद रशिया इन रुपीज, इन रूबल, इन चाइनीज वाला करेंसी, युआन करेंसी। दैट इज द कोर इशू। डॉलर जिस दिन हिल गया, आज के दिन में आप ये बात सवाल पूछ रहे हैं, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ योर क्वेश्चन। डू यू नो यूएसए का डेट कितना है? 38 ट्रिलियन US$। 38 ट्रिलियन का मीनिंग आम लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसका मीनिंग ये है सिंपल भाषा में, एक साल में ये जो डेट है, ये डेट का इंटरेस्ट होता है, उसको सर्विस करने के लिए आपको $1 ट्रिलियन की जरूरत है। यूएस सरकार को, देश को चलाने के लिए $6 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है। रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? $4 ट्रिलियन।
2 ट्रिलियन डेफिशिएंसी इधर, 1 ट्रिलियन उधर, 3 ट्रिलियन, कितना प्रिंट करोगे आप? इसलिए उनका जो फेडरल रिजर्व का जो गवर्नर है, जो हेड ऑफ द फेडरल, शी और ही, नंबर ऑफ टाइम्स, यूएस रिक्वायर्स कांस्टेंट स्टेडी इनफ्लो ऑफ वेल्थ। आज के दिन में उनके ट्रेजरी में जितना है, ये जो कल मेरा चैनल में कहीं बैठा था, मेरे से पूछ रहे थे यूरोप को क्या करना चाहिए, उनके लिवरेजेस ने क्या कोई लिवरेज आपको पहचानूं कि आपको शायद नहीं पता होगा कि ये जो यूएस का ट्रेजरी में चाइना का होता था 3.6 या 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, उसका ट्रेजरी बॉन्ड्स आज के दिन में डर के मारे सब कम करते जा रहे हैं। 746 बिलियन डॉलर है चाइना का। हिंदुस्तान का भी काफ़ी था, काफ़ी नीचे आके 242। जापान का 1.1 ट्रिलियन है, यूके का काफ़ी है 952 सम ट्रिलियन। सब देश जो है अपना कम करते जा रहे हैं। यूरोप का आज के दिन में सब मिला के, यूरोपियन कंट्रीज, यूके भी शामिल है इसमें, टोटल 10 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट उनके ट्रेजरी में है। क्या ये लिवरेज नहीं है? 10 ट्रिलियन अगर वो बेच देते हैं डॉलर मार्केट में, अगर वो वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा झटका लगेगा डोनाल्ड ट्रंप को, उसको नींद क्या, वो हार्ट अटैक, डबल अटैक, ठीक है ना। सो इसलिए लेवरेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग मी, इट इज अ सिंपल डेस्परेशन स्ट्रगल। अब मिडिल ईस्ट में तो शिफ्ट हो गया है, देखा कि 2019 दिसंबर तक उनका शेल गैस प्रोड्यूस हो गया। तब तक वो इम्पोर्ट करते थे, लेकिन दिसंबर 2019 से उनका एक्सपोर्ट करने लगे, तो उनका जो डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट में था, देखा कि भाई अभी कोई ज़रूरत नहीं है, दे स्टार्टेड वाइंडिंग अप। ध्यान ले लीजिए उस समय क्या होता था। 9/11 के बाद आए थे, 20 साल रहे अफगानिस्तान में, ना डेमोक्रेसी हुआ ना कुछ हुआ, हड़बड़ी से वो निकलने लगे। क्यों निकलने लगे? कॉन्स्टिट्यूंसी, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी सवाल पूछने लगे, आप दूसरों का लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? वियतनाम में आपको इतने सालों से $8 ट्रिलियन इन 20 years they spent. Afghanistan alone was $2.86 ट्रिलियन। You getting my point? So पैसा ही जा रहा है। आपका बॉडी बैग से कितने गए थे? 2700 बॉडी बैग गए फ्रॉम अफगानिस्तान, फाइटिंग जस्ट टू फाइंड आउट ओसामा बिन लादेन। अफगानिस्तान में वो ढूंढते रहे, मिला कहाँ पे? अबोताबाद में। तो ये जो मसले हैं, ये एक्चुअली ये CIA का गेम है। वो कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हिंदुस्तान को नहीं चाहते हैं। वो एक कहावत है, थ्यूसिडाइड ट्रैप का, एक प्रोफेसर एलिसन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो यूएसए, उनका पेपर निकला था 2015 को। टाइम टू टाइम वो अलग अलग जगह में लेक्चर देते, बहुत बढ़िया चीज़ बोलते कि एस्टैब्लिश्ड पावर एंड एकम्प्लिश्ड पावर विल नेवर अलाउ और राइजिंग पावर टू कम एनीवेयर क्लोज टू इट्स फुटिंग। ठीक है ना। सो वही कहानी है। व्हाट इज इंडिया टू चाइना, चाइना इज टू यूएसए, and India is also to USA. USA does not want India to become a second China. वो कोशिश यही करेगा जितना खींच सकता है 2050, 2075, 2100 तक खींच खाच के सुपर पावर स्टेटस, दांत दिखा के, कुछ भी हो, ग्रीनलैंड हो या ना हो, वो डिमांड करते रहेगा। इट विल ट्राई टू असर्ट, शो इट्स एग्रेसिव। खुद का घर में उसका आग लगी हुई है। आइस का जो मर्डर कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, आप देखो ना क्या हो रहा है। पहली बार यूएस के हिस्ट्री में 70 लाख पीपल, 7 मिलियन पीपल ऑन द स्ट्रीट्स 2 months बैक। यू सी दिस? इफ द एंटी इमिग्रेंट लॉ इज फाइन, बट देयर इज अ वे टू डू योर हैंडलिंग स्टेडी इनफ्लो ऑफ वेल्थ। जब आप बात करते हैं, जो फेडरल रिजर्व गवर्नर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? CIA का जो डिफाइंड रोल है वो करते रहेंगे, लेकिन CIA का अनडिफाइंड रोल है 5 चीज़ों का, इससे ज़्यादा है। वे 5 मेन: ऑयल इंडस्ट्री 2.1 to 2.6 ट्रिलियन का मार्केट, फार्मास्यूटिकल 1.8 to 2.1 ट्रिलियन US डॉलर का मार्केट है, ड्रग्स 1.6 to 1.8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, डिफेंस इंडस्ट्री 2.1 to 2.6, एंड सबसे लास्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट। नहीं तो सीरिया को क्यों लेजिटिमाइज कर रहे हैं? क्योंकि सीरिया में ऑयल फील्ड्स है और ऐसा क्वालिटी ऑयल है, सल्फर कंटेंट इज लो, एसिडिटी इज लो। आप तो एमटेक को पढ़े लिखे हो, आप यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है कि नहीं? तो क्यों उनको लेजिटिमाइज? व्हाई शुड अल कायदा और आईसिस पर्सन बिकम द मोस्ट हैंडसम प्रेसिडेंट गोइंग अराउंड? वाई इज अफगानिस्तान, सेम तालिबान जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे, उनको लेजिटिमाइज क्यों कर रहे हैं? वाई इज यूनिस देयर सिटिंग, जमायती को क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में आज के दिन में इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ लिक्विड नेचुरल गैस बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस विच चाइना इज ट्राइंग टू टैप।
Plus, it wants to contain to give a pushback to China. China has penetrated deeply into Bangladesh. It's a late realization of USA. अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो डिबैकल है, उनका जो कोलैप्स है, इट विल स्पीड अप फास्टर. देयरफॉर दैट बुक Monsoon, The Future of American Power by Robert Kaplan says, if USA has to remain relevant in time said in 21st century, it has to focus on South Asia. वो लिखा है इंडियन ओशन रीजन, उसमें क्या है? साउथ एशिया. व्हाट इट मीन्स इज दैट. तो ये जो आप राउंडल बोल रहे हैं ना, इधर किसका हाथ है? तो किसका हाथ होगा? ये एक, दिस इज अ रिसर्च डॉक्यूमेंट, उसी का ही हाथ है. सर पहले टू फ्रंट वॉर्स की बात होती थी कि कभी इंडिया पाकिस्तान पे कोई अटैक करता था या प्लानिंग होती थी या कुछ भी होता था, तो ये कहीं ना कहीं से दबे सेंटिमेंट्स आते थे कि अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो हम एज चाइना हम भी अटैक करेंगे. तो टू फ्रंट वॉर की प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात होती थी. अब एक थ्री वॉर फ्रंट पे हम बैठे हैं टेक्निकली, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश. कभी क्या ऐसा हो सकता है कि तीन फ्रंट्स पे इंडिया को अटैक किया जाए, और अगर हो तो हाउ केपेबल आर वी टू फाइट दिस वॉर? ये जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, वन फ्रंट, टू फ्रंट, थ्री फ्रंट, मेरे विचार के मुताबिक, मेरा जो रिसर्च, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी सीख रहा हूँ सबसे, ये फ्रंट जो है, दीज आर मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन और एक्सप्रेशन. वॉर इज वॉर, ठीक है नहीं? आपके और हमारे नजरिया से हमें लग रहा है तीन फ्रंट, बांग्लादेश उधर है, पाकिस्तान उधर है, इधर चाइना का एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ है, तीन फ्रंट हो गया. लेकिन क्या आपको मालूम है कोई एक देश है जो है तीनों फ्रंट को एक ही फ्रंट देख रहा है? कौन है वो? वो है चाइना. मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 को एक ऑप्टिकल फाइबर ले हुआ, वो कंप्लीशन हुआ फ्रॉम चेंगदू. चेंगदू इज द वेस्टर्न थिएटर कमांड ऑफ चाइना और रावलपिंडी के बीच में. आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, एमटेक कर रखे हो, ऑप्टिकल फाइबर ले होना मतलब आप समझ सकते हैं. ओके. नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके जितने नए वेपन प्लेटफॉर्म थे, जितने सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म, आज के दिन में चाइना के अंदर बाइडू टावर्स है. बाइडू टावर्स, व्हाट इज बाइडू टावर? बाइडू टावर इज कनेक्टेड टू बाइडू सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन. ओके. सो व्हाट डज इट डू? इट इज लुकिंग चेंगडू के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट का अगर कोई सैटेलाइट हो तो वो देख रहा है फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका टू ईस्ट कोस्ट अफ्रीका, जिसको आज के दिन में हम बोलते हैं कि इंडो पैसिफिक कॉरिडोर. इंडो पैसिफिक पहले नहीं होता था. ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो आके पार्लियामेंट में 2007 को लेक्चर दिया, फिर डॉर्मेंसी आ गया 2017 को, यही डोनाल्ड ट्रंप इंडो पैसिफिक काफ़ी जोर दिए, उन्होंने रिवाइव किया. फिर बाइडेन के टाइम में क्वाड टुक बर्थ and now it is dying almost a debilitating death. Okay, so there is lot of relevance. ये जो पूरा स्ट्रेच है फ्रॉम वेस्टर्न अक्रॉस हवाई से लेके ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इसको इंडो पैसिफिक कहा जाता है रीजन. उसमें एक सेंट्रल सेक्टर है, एक ईस्टर्न सेक्टर, एक वेस्टर्न अरेबियन सी जो है वेस्टर्न सेक्टर माना जाता है. तो ये जो कॉरिडोर में अगर चेंगडू के ऊपर कोई सर्वेलेंस सेटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट हो या जो भी GSLV आप मान लीजिए, not one, it has got a huge constellation of overlapping, always there, integrated. Okay, it is able to see the complete swath in one go. तो चाइना के लिए क्या ये मल्टी फ्रंट है या सिंगल फ्रंट है? सिंगल फ्रंट. सो देयरफॉर प्रवीण सानी फोर्स मैगजीन का एडिटर कोई जगह उन्होंने लिखा है कि रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट. अब थोड़ा सा अपना जोन चेंज करते हैं. यूएस ने वेरी ओपनली रेड किया वेनेजुएला में, प्रेसिडेंट को उठा के लिया है. कैसे आप देखते हैं कि दुनिया में एक देश है जो एक बुली की तरह काम कर रहा है कि जिसको भी मन कर रहा है उठाया और लेके आ गए? हाउ डू यू थिंक द वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज आफ्टर थिंग्स लाइक दिस, इवेंट्स लाइक दिस? बहुत बढ़िया सवाल है. 1 मिनट में जवाब देने के लिए इतना ही कहूँगा. ये बहुत ही उल्टा, एक 21st सेंचुरी में जब हम इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की तरह देख रहे हैं, ये एक सुपर पावर के हैसियत से बहुत गलत उदाहरण. उनके मन में शायद ये विचार चल रहा है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि अमेरिका ग्रेट था नहीं. जिस तरह हड़बड़ी से वो अफगानिस्तान से वापस गए हैं, जिस तरह लड़ाई उन्होंने इराक में कुछ बोला था, कुछ किया, लीबिया की बात करिए, लेबनान के साउथ से बात, कहीं पे भी आप उदाहरण लेते हैं तो वैसा कर नहीं पाए हैं. तो इसलिए
देश के अंदर खूब सारे चुनौती हैं, कुछ मैंने बोला हूँ और कुछ कह नहीं पाया हूँ। ये सारे चुनौती की वजह से वो एक्चुअली उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। एप्स्टीन एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो इसलिए वो आइस का देखो ना, डे टू डे एवरी डे उनका किलिंग चल रहा है, एवरी डे नहीं तो दे आर किलिंग देयर ओन पीपल। सो ये जो उन्होंने किए हैं, वेनेजुएला 4500 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। आप अगर कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एक्शन क्या है, लॉ एनफोर्समेंट एक्शन आपका डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होता है, 4500 किलोमीटर दूरी पे नहीं होता है। नंबर 2, काइनेटिक फायर किया है आपने, मिसाइल फायर किए हैं, आर्टिलरी किया है कि नहीं। नंबर 3, ये आपका स्पेशल फोर्सेस CIA मॉड्यूल जाके रहे हैं। आपका वहाँ जाने का कारण 3-4 चीज़ें मैं देखता हूँ। नंबर 1, टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को देना। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए 20 जनवरी 2025 को, तब उन्होंने पूरा डिसाइसिव डिसीजन लेके आए थे कि ये लड़ाई को बंद करना है। आते ही नहीं वो बिल्कुल पकड़ में आ गए किसके, डीप स्टेट। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका का नहीं है जो कि बिना डीप स्टेट अपना गवर्न किया हो। आए थे कोई मुद्दे के साथ, लेकिन कर चले, और कोई जो पीछे छुपे हैं जो डीप स्टेट का, डीप स्टेट उनके पर बोला कि भाई आप लड़ाई को लागू रखो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बीच बीच में झटका लगा, नहीं मैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन के टाइम में ये बोल के आया हूँ। बट एक स्टेज था, डिथरिंग के बावजूद उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल को सैंक्शन किया था, याद है आपको। टॉमहॉक मिसाइल एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होता है। तो प्यूटिन को लगा अगर इस तरफ आप शांति लाना चाह रहे हैं, हम भी आपको पत्ते दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मार्च 2025 को क्यूबा के साथ उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री, उसको बोलते हैं डिफेंस पीस एग्रीमेंट, उसको साइन किया। उसके तहत क्या था, उसका तहत ये था, बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मेन सेंट्रल पॉइंट था कि रशिया का ऑफेंसिव वेपन, जैसे ओरेशनिक मिसाइल एक है, एक हाइपोसोनिक मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल, ठीक है ना, ये उधर डिप्लॉय करने के लिए वो इजाज़त देता है। तो जैसे ही हुआ एक 7 दिन के अंदर, हाँ 7 दिन, चंद एक दिनों के अंदर रशिया के नेवल फ्लीट वो देखने लगे। क्यूबन वाटर कैरिबियन से ज़्यादा दूर नहीं है। और वेनेजुएला में यू हैव हिजबुल्ला, यू हैव ईरान के जो IRGC, यू हैव रशियन प्रेजेंस देयर, यू हैव चाइनीज प्रेजेंस देयर। तो रह क्या गया, सिर्फ हमारी बाकी थे और हुतीज बाकी थे। सारे एक्सिस ऑफ विविल अगर अपना बैकयार्ड में आके बैठे हुए हैं। और आप कोलंबो, यहाँ पे अब कोकेन की बात करते हैं, 2050 टन की कोकेन जो है उससे पिछले साल में एक्सपोर्ट हुआ था कहाँ, USA के अंदर। 1 टन का जो कीमत है 25 बिलियन, मल्टीप्लाई बाई 250। तो इससे ये जो फेंटेनाइल का जो एलिगेशन डाल रहा है ना, उसमें UN के डॉक्यूमेंट में कहीं पे नहीं है, वो कोलंबिया आता है उसमें। लेकिन उनको कुछ बहाना चाहिए था, क्योंकि ऑयल फील्ड है। हालांकि ऑयल फील्ड इनडायरेक्टली मैं कह दूं क्या स्ट्रेटेजी है, चाइना को आमने सामने वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, चाइना के पास लिवरेजेस है। वो इनडायरेक्टली चाइना को घेरना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं। उस तरफ रशिया के साथ ये हथियार जब निकलने लगे, कहाँ पे, क्यूबन वाटर कैरिबियन से ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनको झटका लगा। तब उनका जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो बना है 2025 का, ये उनका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा डिपार्चर है। क्या डिपार्चर है, पहले वो चाइना नंबर 1 एनिमी बोलते थे, अभी कह रहे हैं रशिया पीयर ग्रुप है। उसका G8 मेंबरशिप जो छिना था 2014 को, उसको रेस्टोर करेंगे। उसको जियोपॉलिटिक्स जो है वर्ल्ड ऑर्डर का इकोसिस्टम के साथ रीइंटीग्रेट करेंगे। चाइना को कह रहे हैं तेरे को जो करना है कर ताइवान के साथ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप जो है मेरा अमेरिका जो डॉक्ट्रिन है, मोनरो डॉक्ट्रिन, उसके बरखिलाफ कोई एक्शन करोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये है समझौता। तो इसी के साथ ही मैं आपका सवाल का जवाब में यही बताऊंगा कि ये जो सारे चाल चल रहे हैं, ये बेसिकली इट इज़ फॉर सर्वाइवल एज अ सुपर पावर। एंड सर्वाइवल फॉर सुपर पावर में ये जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड रेलिवेंट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, एवरीथिंग इज बस वो चलते जाएंगे। क्योंकि डॉलर सबसे बड़ा जो केंद्रित इशू है वो है डी-डॉलराइजेशन। बड़ा धमकी, बड़ा चुनौती आ रहा है डॉलर डी-डॉलराइजेशन की। ब्रिक्स उनका मेन टारगेट है। ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, उसके साथ 5-10 और जोड़ गए हैं, 11 हो गए हैं, अभी और 11 वेट कर रहे हैं और 50 वेट कर रहे हैं सब ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि जब से वो रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व को उन्होंने फ्रीज किया है 300 बिलियन के आसपास और वापस नहीं दे रहे। हाँ, ब्राज़ील इंसिडेंटली स्विफ्ट जो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर ऑफ मनी का जो मैकेनिज्म होता है, उसको ऑल्टरनेट उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है। मोर देन 41 कंट्रीज आर ट्रांजैक्टिंग इन देयर लोकल करेंसी।
You see, these are all very dangerous signature which are threatening the dollar, the dominance of dollar, threatening the supremacy of the superpower, and also threatening the centrality of America in the transatlantic architecture based on which the global apex organizations are existing today. ट्रम्प ने रिसेंटली अभी वापस ये कहा है कि या तो मैं अक्वायर करूंगा ग्रीनलैंड को, या मैं अनेक्स करूंगा, या मैं सारे सिटीजन्स को $100,000 दे के खरीद लूंगा ग्रीनलैंड को. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट, एंड डू यू थिंक आर्कटिक रीजन can possibly be the new South China region, South China Sea region? Good, very good question. You see, the geopolitical parameters are evolving and changing at a rapid pace. Okay. So आपको मैंने थोड़ा पहले जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजी भी इसमें आ रहा है. ये जो जियो स्ट्रेटेजी का एंगल है, ये बहुत सारे नए नए पहलुओं को ला के सामने रख रहा है. अभी जो ग्लोबल ऑर्डर जो पहले बोलते थे ना, 70% ऑफ द अर्थ और द प्लैनेट इज कवर्ड विथ वाटर, और ह्यूज परसेंटेज वाज कवर्ड विथ आइस ऑल्सो. वो आइस अभी मेल्ट होने लगा है. ठीक है ना. ये जो आइस मेल्ट होता है, इट चेंजेस द डायनामिक. क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, वो दूसरा पहलू है, इसमें नहीं मिक्स करेंगे. लेकिन ये जो नॉर्थ सी या आर्कटिक रीजन है, इसमें आइस मेल्ट होने की वजह से, एक कहीं मैं पढ़ रहा था, एक रशियन एक किताब है, वो किताब में लिखा हुआ है व्लादिवोस्टोक की एक दिया है डिस्टेंस. कोई प्रोडक्ट इंडिया का जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, 95% हमारा जो एक्सपोर्ट है, इट इज़ बाय मैरीटाइम रूट्स. 55% थ्रू साउथ चाइना सी और 45% थ्रू स्यूज कैनाल. ये जो साउथ चाइना सी या उसके ऊपर से जाता है व्लादिवोस्टोक होके, कहीं वो लगता है 45 दिन यूरोप में पहुंचने के लिए. सॉरी, स्यूज कैनाल का जो उल्टा घूम के जाता है नॉर्थ सी, नॉर्वे और नॉर्डिक कंट्रीज, 45 डेज के आसपास लगता है. क्योंकि आजकल सारे ये चोक पॉइंट्स बन गए हैं, पायरेसी हो रहा है, उधर येमेन में हुतीज अटैक कर रहे हैं, तो स्यूज कैनाल ना की बराबर मान लीजिए, वो साउथ ऑफ केप ऑफ गुड होप के नीचे से होके 45 डेज लगता है पहुंचने में. अब मैं कहीं वो किताब में पढ़ रहा था, वो लिखा हुआ है कि एज अगेंस्ट 45 डेज आप सिंपल जाके 15 से 20 दिन के अंदर यूरोपियन मार्केट को टच कर पा रहे हो थ्रू द नॉर्थ सी. एडवांटेज है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज लेस, एनर्जी कंजप्शन इज लेस, टाइम इज लेस, पेरिशेबल कमोडिटी फ्रेश जाके मिलेंगे आपको, है कि नहीं. तो ये जो एडवांटेज है आज के दिन में है क्या, आर्कटिक सर्कल का एक काउंसिल है, उसमें 8 देश है, उसमें यूएसए है. और ये जो ग्रीनलैंड की बात आप छेड़ रहे हैं, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर रियलिस्टिकली पॉसिबल है आज के ज़माने में, आज की दुनिया में, कि यूएस बाय फोर्स ग्रीनलैंड को कैप्चर करे? माई टेक, आई गिव माई टेक. ये बोलने में, धमकी देने में, अमेरिका में एक छोटा सा एक्रोनिम बना रखे हैं, टैको. टैको का मीनिंग बताया क्या है? ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट. ठीक है नहीं. सो ये पूरा छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक वो बोलने लगे, बड़े बड़े बात करता है, ये कर दूंगा, वो कर, ये उसका बुली स्टाइल है. 21st सेंचुरी में कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. डेनमार्क में आप देखो, कल जो 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर दिया उसने डावोस में, उसमें एक चीज उसने बोला है, लेकिन उसको खुद को ही नहीं समझ में आया. वो बोला है कि गोल्डन डोम. एक्चुअली स्पीकिंग, अगर कोई जस्टिफिकेशन चाहिए तो गोल्डन डोम में ही उसका जस्टिफिकेशन बन सकता है. लेकिन उसका भी काउंटर आर्गुमेंट है एज टू क्यों नहीं चाहिए, क्यों एनेक्सेशन नहीं होना चाहिए 21st सेंचुरी में. क्योंकि कोल्ड वॉर 1.0 में यही ग्रीनलैंड में यूएसए को उन्होंने दिया था, एक्सेप्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अलावा उन्होंने दिया था टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. दे हैड मोर देन 14 बेसिस इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड ज़्यादा बड़ा, 2700 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, 1100 से 1200 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट, कोस्टल लाइन 34,000 किलोमीटर. 2/3 ऑफ द कंट्री इज इन आर्कटिक सर्कल के अंदर. 80 मीटर्स का जो आइस है, ठीक है नहीं. 57,000 पीपल आर लिविंग देयर. सो अंडर दिस कंडीशन 14 से ज़्यादा हुआ करता था. उनका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रीटी साइन हुई सोवियत यूनियन के साथ 1972 में, ठीक है ना. वही ट्रीटी से आर्बिट्रली उन्होंने विड्रॉ किया कब, 2002 को. जब से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है, तब से यूएसए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान जो है, मेरे विचार के मुताबिक उनका सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 10-15 साल का पढ़ोगे, एक चीज़ उभर के आता है, कहीं ना कहीं पेंटागन हैज़ गॉन रॉन्ग. उनका लॉन्ग टर्म विजन, एबिलिटी टू एंटिसिपेट वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, वो नहीं कर पाए हैं.
चाहे आप कितने गाली गुलज दीजिए, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, जो पीछे छोड़ा हुआ सुपर पावर रह गया है रेस में, सडनली याद आता, अरे यार चाइना भी आगे जा रहा है, हिंदुस्तान आगे जा रहा है, वो ठीक है ना, वो दिखा मैं तो थर्ड हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं यार, आई हैव बीन अ सुपर पावर, आई विल आल्सो रन। ये वही खेल है। अगर आप उस समय 14 से ज्यादा बेस बनाए थे, आज के दिन में एक ही बेस है, आपको मना कौन कर रहा है? आप नेटो के मेंबर ऑफ बेस बनाओ। आपको चाहिए आयरन डोम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, टू मॉनिटर, टू कीप सर्वेलेंस ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द मिसाइल सिस्टम कमिंग ऑन टू यू। आपको अगर आयरन डोम या गोल्डन डोम का वो जरूरत है, मना कौन कर रहा है? करो, टेक नेटो ऑन बोर्ड, इट विल बिकम मच मोर इफेक्टिव एंड कलेक्टिव। आप बिना मतलब का दांत आंख दिखा रहे हो, जिसकी वजह से पूरा एकदम जियोपॉलिटिकल चर्न हैज बिकम, it has become very messy, and I mean, America has lost its relevance as a superpower. That is all I can say. It is highly disastrous. It is destructive. Same Donald Trump. आप देख लेना, पूरा यूरोप के नहीं, पूरा विश्व के majority of the countries will go against him because of this. अगर कभी यूएस इन कोऑर्डिनेशन विद इजराइल अटैक करता भी है ईरान पे, तो चाइना वी ऑल नो इज अ वेरी गुड ओल्ड ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ ईरान, तो चाइना का ऐसे में क्या रिस्पॉन्स रहेगा? चाइना कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेगा, ओके, कभी भी ये लड़ाई आमने सामने नहीं करेगा, ठीक है? थ्रू ईरान, थ्रू पाकिस्तान वो कुछ छुटपुट करेगा, वो देते रहेंगे, वो करते रहेंगे। सऊदी अरेबिया आप देखिए, सऊदी अरेबिया का रिफाइनरी चाइना में ऑलरेडी, आरामको, दे हैव दे हैव गॉट अ रिफाइनरी इन चाइना, ठीक है नहीं? सऊदी जैसे उन्होंने $400 बिलियन का कमिटमेंट किया है, 65 बिलियन ग्राउंड में हो चुका है ऑलरेडी अप्लाइड इन ईरान। इसी तरह सऊदी अरेबिया को दिया है 65 बिलियन या 80 बिलियन के आसपास कुछ है पैसा, उनका भी काफ़ी चल रही है एग्रीमेंट। सो ये कहना, मैं तो ये कहूँगा कि चाइना और रशिया जो है ना, ये आमने सामने नहीं आएंगे यूएसए के खिलाफ। उससे क्या होता है, कभी भी आप देखेंगे, कभी भी ग्लोबल पावर के बीच में लड़ाई होती है, वो आमने सामने नहीं होती है, वो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई करते हैं। ये भी इसी तरह एक प्रॉक्सी की तरह लड़ाई चलती रहेगी। मेरा असेसमेंट ये कह रहा है, ये हमला कभी नहीं करेगा। अगर करते हैं, आप भूलिएगा मत, स्ट्रेट ऑफ हरमुज एक ऐसा एक मोड है, चोक पॉइंट, जहाँ पे आज के दिन में मेरे खबर के मुताबिक उनका IRGC ऑलरेडी बैठा हुआ है, ईरान का डिफेंस फोर्सेज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनके मिसाइल्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, 3 मेन आइलैंड हैं। जस्ट इन केस अगर ईरान में कोई डिस्टेबिलिटी होती है, वॉर होता है, उसको सिचुएशन आती है, तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? बहुत इफेक्ट, आप सुन के ये हैरान होंगे। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हरमुज आप देखते हैं ना, देखिए ये पर्शियन गल्फ से आता है, एक तरफ सीओ हुमान है, हरमुज एक फीचर है, ठीक है ना, जिसको ऐसे घूम के जहाज जो है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, मैक्सिमम विड्थ आई थिंक इज 30 किलोमीटर, मिनिमम 13 किलोमीटर का, कोई 13 या 17 किलोमीटर है। तो उसी चौड़ाई के अंदर सारे जहाज आते हैं। कितने जहाज हैं? पूरा विश्व का 27 to 33% ऑयल, फॉसिल फ्यूल और गैस, लिक्विड नेचुरल, 27 to 33% इज हेल ऑफ ए लॉट, कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है। और उसमें से कुछ जाते हैं घूम के कहाँ, वो रेड सी हो के सुएज कैनाल के बीच में, वो भी इट इज अंडर डोमिनेशन बाय हुतीज। तो अगर वो चाहेगा, उसमें कंप्लीट मिडिल ईस्ट का जो डिप्लॉयमेंट, इस तरफ से मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आज के दिन में आपका एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, बहरीन में ऑलरेडी उनका हेडक्वार्टर है, बहरीन में देयर इज वन, द एयरक्राफ्ट कैरियर हैज टू गो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हरमुज टू बहरीन। यू गेटिंग माय पॉइंट? आज के दिन में कतर एंड बहरीन में, कतर है एयर हेडक्वार्टर्स किसका, यूएसए का, और जो नेवल हेडक्वार्टर है वो बहरीन में, सबसे बड़ा तादाद में वहाँ पे अमेरिका के फोर्सेस हैं। कहाँ से जाते हैं? स्ट्रेट ऑफ, अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज 3 आइलैंड छोटे छोटे मैंने बताया, वहाँ अगर बैठ जाते हैं, एक गोला फायर ना करे, एक को मान लो अब फुल झड़ी भी जला देते हैं, उससे पूरा जो अमेरिकन फौज चौक हो जाएगा। आप देखिए ना, एक तो इकोनॉमिक चौक पॉइंट, एक मिलिट्री चौक पॉइंट हो गया उधर, ठीक है ना, 2 हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज द प्रिडोमिनेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, कौन सा है? वो है पर्शियन गल्फ से लेके इंडियन ओशन होके, मलाक्का स्ट्रेट होके, साउथ चाइना सी और एशिया पैसिफिक जाता है। पर्शियन गल्फ से लेके मलाक्का तक यह है करीब 5750 किलोमीटर, 7 दिन लगते हैं एक जहाज को ट्रैवल करने में। मलाक्का से लेके इस चाइना तक अनदर 7 डेज। इसमें 9 से ज़्यादा चोक पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज एक ऐसा चोक पॉइंट है, मलाक्का से और खतरनाक हो सकता है।
ये ईरान का प्रॉक्सिमिटी में है, अगर जब चाहेगा तब उसको गर्दन को मोड़ने का काबिलियत है। What is the biggest security threat in 2026 for India? If you had to name one. इंटरनल इम्प्लोशन। इसीलिए जो पॉडकास्ट का बात बता रहा था हम कि जितना जल्दी आप यूसीसी करोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने जस्टिफिकेशन दिया, अभी तो टाइम नहीं है आपके पास, कितने रिलीजन, कितने लैंग्वेज, कितना आपका एथनिक डाइवर्सिटी है, आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस 330 मिलियन, जिन लोगों को पता नहीं, नहीं नहीं सर 33 गॉड्स गॉडेसेस हैं। मैं कह रहे यार तुम कौन से हिंदुस्तानी आ गए भैया, 330 मिलियन सर, 33 करोड़ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है ना। भाषा आप देखिए 1809 उससे ज़्यादा है। सो इतना डाइवर्सिटी के साथ सबको इकट्ठा रखना निहाती आवश्यक। कुछ नहीं तो प्रयास करो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बाबा, आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट को टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, मेक अ टारगेट, हैव अ डेटम लाइन, वी नीड टू हैव, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस। इंटरनल इम्प्लोजन, आज यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट चाइना का है, कब हुआ था? 1922 में ये माओसी तंग ने स्टार्ट किया था। क्यों किया था? वो क्या था कि आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ अंदर घुसपैठ करके उनको बर्बाद करना है, वही उन्होंने रिवाइव किया है। 5 अगस्त 2019 को जब आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35 अल्फा हुआ, सेम डे उसके आसपास 5-10 दिन ऊपर नीचे देख लेना आप, गो इनटू द डिटेल्स, यू विल फाइंड आउट दे हैव एलोकेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट क्या है? बहुत सारे मुद्दे हैं, 3 चीजें हैं कि सबसे पहले दे विल पेनिट्रेट इनटू द मीडिया। 4 पिलर होते हैं ना डेमोक्रेसी में, मीडिया होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और एक जुडिशरी। चारों पिलर के अंदर वो पेनिट्रेट करेंगे, उनका टास्क है। करके क्या करेंगे? मीडिया को वो दे विल मैनिपुलेट द नैरेटिव। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डोमेन आ जाता है, जब आपका इच्छा होगा मेरे को बुला लेना, बताऊंगा कॉग्निटिव क्या होता है, एपिस्टेमिक क्या होता है, साइबर क्या होता है, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग इंडिया, वी डोंट नो। हमारा खुद का हिस्ट्री हमें नहीं पता है, ओरिजिनल हिस्ट्री। इट इज अ हिस्ट्री विच इज रिटन बाय विकिपीडिया, वी आर रीडिंग टुडे, विकिपीडिया इज कॉल्ड एपिस्टेमिक वॉर। और कॉग्निटिव क्या है? हैकिंग द ह्यूमन माइंड। इस बार 400 पार किया हुआ, 240 पे हम अटक गए। क्यों अटक गए? हैकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। यू हैव सोन द सीड्स ऑफ डाउट इन द लीडरशिप ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। सो ये What according to you is the biggest security threat this year for the world? for the world, it's very interesting. Chaos. Chaos. जब लीडर्स ऐसे हैं और टोटल chaos. क्योंकि chaos के अंदर अगर चाइनीज हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, सुनजू कहा था, द आर्ट ऑफ वॉरफेयर हैज टू बी बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ chaos, बिकॉज इन chaos lies opportunities. Donald Trump is trying to look for opportunities in chaos, but it is all biggest, this thing is chaos. When I say chaos, what I mean is ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, ये बढ़ती जा रही है। लैक ऑफ ट्रस्ट के वजह से मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है। डिफेंस एक्सपेंडिचर इन पिछले 9 साल में 2025-26 हो गया ना, पिछले 14 साल के अंदर इट इज ग्रोन बाय मोर देन 9.5 to 11% वर्ल्ड ओवर। दुनिया के जिस कोने में आप नजर गाड़ेंगे वहां पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये जो लैक ऑफ, सबसे बड़ा चुनौती आप जो कह रहे हैं डेंजर है, ये है जो chaos, the center point of chaos is lack of trust. Do you think we are sitting on the verge of a world war? When you talk about World War, your mind must be going back to World War I and World War II. The components which participated in the World War at that point in time are different in nature and character today. In that time, we had land, sea and air. Now we have land, sea, air plus electromagnetic plus cyber plus space. उसके ऊपर से technology is also playing its nuanced kind of mayhem. So therefore, what I would feel is कि वर्ल्ड वॉर जो है नहीं होगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिफोर द लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, एक ही दुनिया में एक देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होते थे। आज के दिन में देयर आर 9 कंट्रीज व्हिच हैव गॉट न्यूक्लियर। ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऑफेंसिव वेपन से, न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ डेटरेंट वेपन, इट प्रिवेंट्स वॉर। कुछ नहीं तो कम से कम अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होता, शायद मेरे ख्याल से रशिया कभी इन्वेड नहीं करता।
ठीक है ना, वो तो दे दिया 94 में बुदापेस्ट एग्रीमेंट के मुताबिक, है कि नहीं, 1994 में उसमें सिक्योरिटी गारंटी, सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया गया था, गारंटी नहीं। कौन कौन दिए थे? रशिया भी था, यूके था, यूएसए था। अभी रशिया अगर सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया है तो हाउ इज दैट रशिया इन्वेड? दीज आर क्वेश्चंस. Not that I am not supporting. Russia has got its logic. That's a different story. So therefore, it brings to a point that we are heading for militarization, not necessarily a world war of the type that we have seen in World War I and World War II, or any conflict we have seen in, you know, in Cold War 1.0. There may be regional specific conflict taking place. Maybe South China Sea in isolation. Maybe a number of them. Central Europe will keep burning. इतना जल्दी solution नहीं होगा. ये मैं तो कहीं पे बताया था ब्रेकडाउन मेरा लॉजिक 10 साल से पहले नहीं, अगर हो जाता है वेलकम, विल सेलिब्रेट, ठीक है ना, ये चलेगा कुछ में। आप मान के चलिए यूक्रेन के पास प्रेसिडेंट आज नहीं है टेक्निकल और लीगल टर्म्स में, जेलेंस्की इज नॉट द प्रेसिडेंट, इज फिनिश्ड, उसका इलेक्शन होना निहायत जरूरी है। प्लस कोई देश अपना टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के ऊपर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू सीड 20% ऑफ द लैंड कैप्चर्ड बाय रशिया, द पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव। What is one message that you would like to give to our listeners on the eve of Republic Day? डिसिप्लिन। फौज में कहते हैं टाइम, ड्रेस, प्लेस, बट डिसिप्लिन का मीनिंग मेरा चंद एक पॉइंट से मैं कहूँगा, नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। डोंट आस्क व्हाट नेशन कैन डू फॉर यू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। नंबर 2, जो जहाँ पे है उसके ऊपर कुछ लोग होंगे, अधिकारी होंगे, साथ में कुछ काम कर रहे होंगे, उसके नीचे कुछ होंगे। अब मैं तो ये कहूँगा नेशन को सबसे पहले टाइम देने के बाद अगर टाइम बचता है तो आप जिनको लीड कर रहे हो, जिसके कमांडर, ये फौजी दस्तूर है, आप उनकी वेलफेयर के लिए काम करिए। वो करने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत टाइम अगर बचा है, अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन का बुनियादी चीज़ ये है, एक सैनिक की तरह जियो। तो सैनिक कौन है? मैं कह रहा हूँ सभी सैनिक हैं। एक मिलिट्री सैनिक जो सैनिक होता है वो बात नहीं है। एक चपरासी, एक चौकीदार, एक चाय वाला, एक अखबार जो बेचता है, वो भी सब्जी बेचने वाला, जो घर में आके वो अमेजन का डिलीवर करके जाता है, ठीक है ना, ब्लिंकिट जो है वो कर रहे हैं, वो सब के सब ये हैं। उनका टाइम बाउंड, उनका एक सेंस ऑफ डिलीवरी, सेंस ऑफ कमिटमेंट जो है वो एक फौज की तरह, मतलब देश की तरह की होना चाहिए। और दूसरा चीज़ यहीं पे मैं कह देना चाहता हूँ, जो डिसिप्लिन मैं कहता हूँ उसमें चंद एक चीज़ों को हाईलाइट करना। नंबर 1, सबसे पहला चीज़ है आपको रात को नींद होना चाहिए, साउंड स्लीप। रात को नींद होने के लिए 9 बजे से पहले पहले आपको बेड, हिट द बेड। और नींद तब होगी जब आप डेली शरीर को थोड़ा सा थकान या एक्सरसाइज आप किए हो। 1 से 2 घंटा आपको शरीर को चाहिए। अगर नहीं किए हो तो आप रात को सो नहीं पाओगे, रात को सो नहीं पाओगे, अगला दिन आपका ठीक नहीं होगा रूटीन। दूसरी बात मैं कहूँगा, पानी। शरीर का वजन अगर 80 किलो है, 10 से डिवाइड करिए 8, 8 से 2 माइनस करो 6, यानी कि आपका शरीर अगर 80 किलो वजन है, आपको शरीर को ज़रूरत, मैथमेटिक्स और साइंस के मुताबिक 6 लीटर पानी। 1 लीटर पानी हम 4 ग्लास में बांटते हैं, 250 ml वाला। 6 लीटर पानी कोई नहीं पी पाएगा। आम आदमी जो है 8 से 9 ग्लास पीता है, ठीक है नहीं, मुश्किल से 2 लीटर होता है। अगर आप 2-4 ग्लास और बढ़ा सकते हो, या फ्रूट को क्वांटम या सैलड आप खा सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। डाइट कंट्रोल, डाइट कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू मच ऑफ प्रोटीन इज हार्मफुल, टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज हार्मफुल। बैलेंस डाइट, okay, follow the principle of be like a king when you are having the breakfast, and thereafter it keeps on reducing. तो इसी तरह आप जो जाते हो ना, मैं 5 चीज़ें बोलता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो मेरे को पॉडकास्ट के लिए बुलाए थे, उनको बताया कि देखो डिसिप्लिन जब आप कहते हो 5 चीज़ें करना चाहिए, वो है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और टीचिंग। डेली कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको, ये 5 चीज़ों को। तब जाके एक आप सिविलाइज्ड, एक कंस्ट्रक्टिव, एक सिटीजन बन सकते हो देश का। तब जाके आप कह सकते मेरा ड्यूटी देश के लिए क्या है, ये नहीं कि देश का ड्यूटी मेरे लिए क्या है, ठीक है नहीं ये। और इन्हीं चीज़ों को अपनाने के लिए आपको 5 गोल्डन 5 P बोलते हैं। बी पोलाइट, बी पेशेंट, बी पॉजिटिव, बी प्रोग्रेसिव एंड बी प्रैक्टिकल इन अप्रोच। आपको बाल कोई नहीं बका कर सकता है। और 3 T से बच के रहना है, टंग, टेम्परामेंट, टेस्ट।
ये तीनों टी से बच के रहिए। आप बिल्कुल सीधा डिसिप्लिन के रास्ते में चलते रहोगे। फौजी दस्तूरों में ड्रेस, टाइम एंड प्लेस वो नहीं है। मैं इससे हट के थोड़ा सा आपको अलग से बता रहा हूँ ताकि देशवासियों को ये मैसेज पहुँच सके। और आप देखिए जो जीडीपी का बात किया ना 30 ट्रिलियन, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी या कोई सरकार आके बिठा दिया वो नहीं बन सकता है। आपको देखना है एक ऑपोजिशन पार्टी 1962 की लड़ाई क्यों हुई, मैं काफ़ी हद तक कहूँगा क्योंकि ऑपोजिशन हमारा इफेक्टिव नहीं था। ऑपोजिशन एक, मैं सॉरी एज ए मिलिट्री मैन मेरे को, क्योंकि मैं एक सिटीजन हूँ, ये भी एक सिक्योरिटी का मसला है। ऑपोजिशन आज के दिन में इफेक्टिव नहीं है। नॉन इश्यूज को वो हाईलाइट कर रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक है। 1962 या 61 और 62 के बीच में बड़े नॉन इश्यूज लाते थे। जवाहरलाल नेहरू सबको रफा दफा करते, किसी की बात सुनते नहीं थे। वो परिस्थिति नहीं होना चाहिए। पूरा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव पूरा रिपोर्ट लेके पार्लियामेंट पे चर्चा करिए। ये नहीं कि वोट चोरी फलाना ये अभी इंस्टीट्यूशनल, द कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स है उनके पीछे पड़िए है। ये भी एक किस्म का यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट है ना, मैंने बताया 4 पिलर में वो घुस रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। All right, thank you so much, Major General Sudhakar. Thank you so much for your time. Thank you so much for all the knowledge जो आपने share करी है, and we hope to have you again on the show. Hopefully you had a good time. थैंक यू सो मच।